संसारावसाना मोरा कबे तू चाहे। ईशाया चढ़िया कबे छुता विमाना। ईशाया चढ़िया कबे कबे हम हेराबो श्री वृंदावाना। कबे रूपा रघुनाथा पदे हाइबे अकुति। रघुनाथा पदे हाइबे अकुति। कबे हम बुझा बासे युगल फिरीति। कबे हम रूपा रघुनाथा पदे राहु मोराशा। रूपा रघुनाथा पदे राहु मोराशा। प्रार्थना कराए सदा नरोत्तम दासा। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा। हरि हरि बलि सेना जने वादनीरा। जय सच्चिनंदन जय गौरा हरि। सच्चिनंदन जय गौरा हरि। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hello Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna
Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Premanande Hari Hari. Jai Jai Sri Ram. Umakant bro, थोड़ा इंट्रोडक्शन बोलो, आ जाओ. हरे कृष्ण. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अभी सब लोग इधर हिंदी भी आते हैं, अंग्रेजी भी आते हैं. So I can speak in English? Yeah. So first of all, let me offer my humble obeisances at the lotus feet of my Diksha Guru Pada Padma. Jom Vishnupada Paramahamsa Parivrajakaacharya Ashtottara Shata Jagadguru Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. And at the lotus feet of my, I cannot say whether he is my Shiksha Guru or the parampara of my, he is absolutely parampara of my Gurudev, but because Gurudev has told I am leaving 5 Narayan Maharajas behind me, I have to call him as my Gurudev. So at the lotus feet of Pujapad Bhaktivedanta Vanagoswami Maharaj, I was hearing from many disciples about Maharaj. Before that, I just like to introduce how our parampara is working. Pujapad Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj always used to say, none of our acharyas are coming from this plane. They are all coming from that plane. Only thing, those who have perfected, those who have perfected Harinam and made some progress in their spiritual life, they can make out the swarupa of the personalities right in front of them. But our situation is such, even though our Guru Varga is there, like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and right up to the present Acharyas, even when my Gurudev was there, I could not make out who he is. He is just like anyone ordinary human being for me. But now, by the mercy of my Gurudev again himself and by the mercy of all these Acharyas, I am able to understand little that he is not an ordinary person. And none of my relatives or anyone in this world are my well-wisher except for my Gurudev and Guru Varga. So they all come from different backgrounds. Similarly, this Pujapad Bhaktivedanta Vanagoswami Maharaj, he has come from such a beautiful family that one of his uncle was already in our Gaudiya Sampradaya. And he is such an exalted person. See, when we say exalted, we should also define how exalted they are. Simply we say, oh, Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. Arre Baba, explain how merciful, what merciful they are. Similarly, when I say he is coming from such an exalted family, what is there that exaltedness? We know about our Gurudev and we know something about Param Gurudev. So Param Gurudev told Pujapad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, he gave the entire responsibility of the Mata, our Devanand Gaudiya Mata, and he
said, giving all the keys into his hand, he said, चाहे जितना भी ब्रह्मचारी आए और जितना भी ब्रह्मचारी जाए, लेकिन आपको कभी भी इस मठ छोड़ के नहीं जाना, इस मठ को आप संभालना. If someone is giving this kind of responsibility, externally it appears very common, like some management. It is not like that. It is the confidence of that guru on his disciple. The faith, yes, he will take care. Just like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told about our Param Gurudev. When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aunt asked, you have made so many matas all over the world, who will take care? Then showing our Param Gurudev, he said he will take care. It is not an ordinary thing, because they know who will run the show in the future. Similarly, they know what will happen to Devanand Gaudiya Mats, and so the in charge was given to Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj. And Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj is our Maharaj's uncle. So we are so fortunate. He is coming from that lineage. Through blood relationship, he is connected to Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj. But through our spiritual parampara, he is connected to our such a beautiful background. Just like, महाराज जी बोलूं या क्योंकि मेरे को बोलने को चांस दिया तो मैं ऐसे बोलते रहता हूँ. Like just like when we want to get some bride or bridegroom for our family, we will check their forefathers, what their family background is. If we see our Maharaj's background from spiritual point, our Gurudev is no ordinary personality. Because in Seva Kunj, Radharani herself sent Mahaprasad to our Gurudev. And our Maharaj belongs to such a family lineage. And our Gurudev belongs to our Param Gurudev, on whom Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had so much of faith, and he gave the entire responsibility of all the matas. And all of us know how great our Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So the lineage, spiritual Guru Parampara lineage is so high. In that parampara, Maharaj is coming. And if we see his family background, Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj happens to be his uncle. So how fortunate we are to have such an exalted family coming all the way from Mathura to just save us and bless us. And now I don't see that Maharaj has come here. Gurudev has sent him. And Gurudev in the form of Maharaj is here among us. Because Gurudev told, I will leave 5 Narayan Maharajas. Now how can I see him as one Maharaj? I cannot see him as like that. My Gurudev is here. So we have such a beautiful personality among us here. And we are all really blessed. Why we are blessed? Just not words. Why we are blessed? I don't know how many population is there in Bangalore. It is somewhere close to crore or 2 crore like that. Among all those 2 crores, around 5, when I heard when Gurudev came, around 500 disciples are there for Gurudev in Bangalore. And among all those 500, we have more than other Maharajas disciples also. But I can count how many of us are here. So we are really fortunate. We are really blessed in the midst of this very dangerous corona. So Maharaj is here to bless us. We are already blessed. Whatever Harikatha he speaks, it will be only formality for us. But still we need that shower of that Harikatha. So I request and welcome Pujyapad Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj on behalf of our Asim Krishnadas and Asim Krishna Prabhu and Suchitra Mataji. They have hosted this, Shloka Mataji. and they have hosted the program in spite of so much difficulties. And our Bilomangal Prabhu and Ashok Prabhu are eager to have Maharaj in place. But due to situations which are not within their reach and out of their control, they are helpless. So to take... So we are very fortunate to have such a great personality among us. I welcome Maharaj on behalf of all the devotees here. Thank you very much. Hare Krishna. कब तक बोलना है क्या? खत्म कब करें? Maharaj is asking you. मैं करूँ ये कब तक खत्म करना है मतलब? You can continue if you want. You can continue. 1 बज गया ना? So now the time is 5. So Maharaj's comfort. How long do you want to talk?
Maharaj also have to take prasadam by 1:45 2 o'clock. So by 1:45 2 o'clock. क्या जी? 60 मिनट to 90 मिनट. ये थोड़ा ये हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा. नहीं ज़्यादा तम समय बोल रहे हैं. आप लोग सब हिंदी समझते कि नहीं? अच्छा. गुरु जी का कृपा से सब हिंदी समझ. गुरवे गौरचंद्राय राधिका वै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ. तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो. शायद आप लोग जानते हैं आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है. आज नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि है. वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण. वैष्णवों के जीवन चरित्र कीर्तन करने से जीव माया से मुक्त हो सकता है. भगवान की कथा श्रवण करने से आप अनेकों संशय हो जाता है आपका, किंतु भक्त की जीवन चरित्र कथा श्रवण करने से आपको कोई संशय नहीं होगा. जैसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के जब रासलीला कथा श्रवण कराया उस समय परीक्षित महाराज अनेकों जो है प्रश्न उठाया. ये ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान जगत में प्रकट किस लिए होते हैं आप बताओ. जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे. युग युग में भगवान इस संसार में आते हैं किस लिए? असुरों के विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और युग धर्म वर्णाश्रम धर्म आदि पुनः स्थापित करने के लिए भगवान आते. किंतु श्रीमद् भागवत में जब सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के रासलीला कथा श्रवण कराया और इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न उठा और प्रश्न यही कहने लगे, गुरुदेव यदि मेरा कोई अपराध नहीं हो तो हम आपके निकट ये प्रश्न में करता हूँ. या आपने रासलीला में कहा गोपियां परस्त्रियां थी, कृष्ण के विवाहित पत्नियां नहीं थी, परस्त्रियां दूसरे गोपों के साथ की विवाहिता थी. और भगवान के साथ ऐसे
रास विहार ऐसे कैसे किया? परदार अभिमर्शनम किम अभिप्राय जदुपते। जदुपति भगवान कृष्ण जो धर्म संस्थापन करने के लिए आए हैं, और परदार अभिमर्शनम किम अभिप्राय है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो इसके द्वारा संसार में समाज कल्याण कैसे होगा, आप भी बताइए। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं उसके अनुगत व्यक्ति वही करते हैं। गीता में भी भगवान क्या कहा? जद जयति श्रेष्ठ जद जयाति आचरण श्रेष्ठ तत्त इवेतर जना सजत प्रवणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, लोकस्तत् अनुवर्तते। तो भगवान श्रेष्ठ होकर के ऐसे ऐसे कार्य क्यों किया? इसके लिए समाज में क्या होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। विशेष करके इस श्लोक ने कहा दिया परदार अभिमर्शनम की वो अभिप्राय जदुपति, जदुपति कृष्ण। और ऐसे परस्त्रियों के साथ प्रेम विहार, आलिंगन चुंबन आदि, ये तो समाज के लिए दूषित हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया, इस कथा को आप मुझे बताइए। तब भगवान सुंदर, तब उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर विस्तृत रूप में इस कथा को श्रवण, इस कथा को बताया है। धर्म व्यतिक्रम ही ईश्वरम, ये जो संसार के धर्म अधर्म की परिभाषा किसने दिया? भगवान ने बताया है। अनुशासन जो जिसको हम लोग कहते हैं क्या बोले, जो जिसमें जो नियम कानून लिखा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये किसने बनाया है? भगवान ने तो बनाया। शास्त्र में जितने विधि निषेध किसने बताया गया? पाप करने के फल क्या होगा, पुण्य करने से फल क्या होगा, ये किसने बनाया? किसी को पाप कहते हैं, किसी को पुण्य कहते हैं, ये सब डेफिनेशन किसने दिया? भगवान ने दिया, है कि नहीं? तो स्वयं जो अनुशासन की जो उन्होंने दिया, और स्वयं ऐसे पाप कर्म की अभिप्राय परदारो अभिमर्शनम, ये पाप कर्म है कि नहीं है? शराब पीना, जुआ खेलना, दूसरे स्त्रियों के प्रति कुदर्शन करना, ये सब तो पाप कर्म में लिखा गया है। और पापों के फल के तो नरक भोग पड़ना पड़ता है। ये आपने ही तो बताया, वेद पुराण उपनिषद में तो आप ही बताया गया है कि नहीं? और स्वयं नियम के बता करके स्वयं यदि नियम पालन नहीं करे तो उनके दिए हुए नियम के कौन पालन करेगा? होगा कि नहीं है? और ये मेरे समझ में नहीं आता है, इसके बारे में आप हमें बताइए, संशय छेदन कीजिए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, देखो श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं उसके अनुगत होकर के व्यक्ति चलते हैं, ठीक है। किंतु भगवान जो है ये विधि निषेध के ऊपर है? जो जैसे बलवान व्यक्ति जो करता है उसके लिए शोभा देते हैं, और जो बलवान नहीं व्यक्ति है उसको लोग करें वो अशोभन होता है। जिस प्रकार का शास्त्र में कहा गया, शिव जी क्या पान किया? विष को पान किया, जहर को पान कर लिया। अब शिवत्व नहीं प्राप्त करके यदि विष पान करने के प्रयास करें, वहां विष पान करें, आपको क्या होगा? मृत्यु होगा। तेजवासंगोपी न दोषाय यथा बनने। जिस प्रकार तेजयान व्यक्ति, बलवान व्यक्ति जैसे कार्य करते हैं उसके सभी के लिए अनुगत नहीं है वो। जैसे उदाहरण दिया, शिव जी विष पान करते हैं, आप कहें शिव जी विष पान किया तो हम भी पान करें, तो उसके फल क्या होगा? जैसे आजकल बहुत लोग हैं शिव जी की पूजा करते हैं और वो शिव जी के निकट क्या चढ़ाते हैं? भांग गांजा करके चढ़ाते हैं, बोले ये शिव जी के प्रसाद है। अच्छा है कि नहीं है? किंतु ऐसे नहीं। एक तो शिव जी लेते ही नहीं है, शिव जी वैष्णवान यथा संभव, वैष्णव कोई लेते हैं? ये तो लोगों की बस केवल ऊपर से लोग कुछ लोग मान लिया।
और शिव जी ठीक है, यदि ऐसे कहो शिव जी भांग प्याज भांग और ये सब लेते हैं, हम लेते हैं, तो शिव जी तो बस ये तो पिया विष पान किया, तुम विष पान करो, थोड़ा सा करो। है समुद्र मंथन के समय इतने जहर निकलने लगे और सारे विष को शिव जी के पान करके अपने कंठ में धारण करे। शिव जी के एक नाम क्या है? नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की है। आप थोड़ा जो है विष ले लीजिए, जिसमें आजकल क्या बोलते हैं इंग्लिश विज्ञान की भाषा में क्या था, साइनोड साइनोड, थोड़ा सा जी हमें लग लीजिए, देखिए कैसे है। वो तो नहीं करेंगे क्योंकि हम भांग पियान करेंगे। है कहते कृष्ण ने रास किया, हम भी रास करेंगे। बोले कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठाया, आप उठा करके दिखाइए। कृष्ण कालिया नाग के हजारों फोन पर नृत्य किया, आप नृत्य करके दिखाइए। कृष्ण ने दावानल पान किया, दावानल समझते हो, अग्नि को पान किया, थोड़ा अग्नि का पान करके दिखाइए। वो तो कर नहीं पाएंगे, कहेंगे हम रास करेंगे। कृष्ण कितने गोपियों के साथ रास किया? सैकड़ों गोपियों, शतकोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियों के साथ कृष्ण ने रास विहार की थी। कहते हैं नहीं हम इतने कर, अच्छा 30 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, इसलिए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी तेजी आसान उपी नौ दोष आयो। जो बलवान व्यक्ति जो है उसके लिए दोष नहीं लगते हैं। जथा वन्य, जिस प्रकार अग्नि सब कुछ भस्मीभूत करके निर्मल रहता है। अग्नि में, आग में कुछ भी डाल दीजिए, अग्नि क्या करते हैं, आग क्या करते हैं, सब जला करके भस्मीभूत। और अग्नि सदा सर्व पवित्र रहता है, अग्नि अपवित्र नहीं होते। ये सब उदाहरण दिया गया। और दूसरी बात है, जो कृष्ण जो गोपियों के साथ रास आदि किया, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये भी आपको समझना चाहिए। हड्डी मांस चमड़े पंचभौतिक शरीर की गोपियां की नहीं थी। वो गोपियों के शरीर क्या है? चिन्मय शरीर है। जो कृष्ण जैसे सच्चिदानंदमय, सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, उसी प्रकार गोपियों के शरीर भी चिन्मय है। कृष्ण जो रास विहार आदि की गोपियों के साथ, वो गोपियों की साधारण स्त्रियां नहीं है। और वो क्या है? कृष्ण के स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी की एक कायबुआ प्रकाश कहा जाता है। समझ में? द मैनिफेस्टेशन ऑफ श्रीमती राधिका, स्वरूप शक्ति, इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्ण। कृष्ण के स्वरूप शक्ति कौन है? श्रीमती राधिका। और वही स्वरूप शक्ति के प्रकाश कौन कौन? ये समस्त जो गोपियां जो है, जिसके साथ भगवान रास किया। और भी एक बात सुनो, कृष्ण जो रास किया वो समस्त गोपियां कृष्ण की शक्ति है। क्या बताया? शक्ति है। और शास्त्र में क्या है? शक्ति शक्तिमान और दैव अभेद। कृष्ण के कहा शक्तिमान और बाकी कहा जाता है शक्ति। शक्ति शक्तिमान के भेद नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण अपने शक्ति के साथ ये रास विहार आदि की। क्योंकि हम जब तक इसको नहीं समझ नहीं पाते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार संशय हो जाता है। इसको आप समझने के प्रयास करें। इसमें जितने भी गोपियां थी, ये सब क्या? राधा जी की कायबुहा स्वरूपा है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविस्त, तार भी जो निज रूप तया कला भी स्पष्टीकरण कर दिया है। ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं आपके नहीं? इस श्लोक क्या पढ़िए? आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार भी जो है निज रूप तया कला भी, निज रूप तया कला भी। कृष्ण की स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी राधारानी की ये सब क्या है? कायभा स्वरूपा है। ये भगवान जो लीला आदि करते हैं, कोई साधारण पुरुष साधारण मानव की तरह नहीं करते हैं। कृष्ण के जितने भी लीला के जो पात्र पात्री है, सब कृष्ण के निज परिकरजन है। कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान साधारण जीवों के साथ नहीं करते, और सब कहां कर पाए? जैसे जय विजय जय विजय वैकुंठ से आए जो कथा आप जानते हैं। फूर कुमार के द्वारा अभिशप्त होकर के जय पूजा आ गया और 3 जन्म वो असुर हो गया। समझ
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र। ये है कौन हो? ऊपर से तो लीला कर रहे हैं, किंतु है कृष्ण के नित्य परिकर है। मेरे कहने की तात्पर्य उसी प्रकार कृष्ण के जो जितने भी गोपियां थी, ये सब कृष्ण की नित्य परिकर है। जिस प्रकार छाया के साथ छोटा बच्चा जैसे खेलते हैं, जथा अर्भकम, श्रीमद् भागवत में बताया, जिस प्रकार छोटे बच्चा जैसे अपने छाया के साथ जैसे खेलते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी अपने लीला रस आस्वादन करने के लिए अपने शक्ति के साथ ये प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। उसी प्रेम विहार को स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा इस जगत में प्रकट कराया। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवमाश्रितम् भजते जासुत्र तत्परो भजते तत्पर भजत। भगवान कृपा करके गोलोक वृंदावन धाम से वही समस्त लीला को जगत में प्रकट करा रहे हैं। और उस कथा को कोई यदि श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, वो इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम में चले जाएंगे। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सारे संशय के जो है छेदन किया और स्थापित कर दिया सिद्धांत को। हमें कहने की यह तात्पर्य है, भगवान की कुछ लीला कथा श्रवण करके हो सकता है आपके मन में अनेकों संशय होगा, डाउट्स आएगा, किंतु भक्त के जीवन चरित कथा को श्रवण करे उसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। क्यों? भगवान कुछ कुछ ऐसे आचरण करते हैं, वो अति मानव आचरण करते हैं। अति मानव माने बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भगवान की कहीं कहीं जो आचरण जो है, हिज बिहेवियर एंड बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव चरित्र, वो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। किंतु देखो भक्त के जीवन चरित्र हम आलोचना करें, भक्त क्या करते हैं? अनुकूल परिवेश के अनुसार वो क्रिया आदि करते रहते हैं, और उनके जीवन चरित्र कथा हम सुने तो हमारे जीवन में भक्ति के लिए उत्साह बढ़ेगा। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है भगवान अपेक्षा भक्त के जीवन चरित कथा अधिक श्रवण करें, क्योंकि भगवान सब जगह में आचरणशील नहीं होते हैं, और भक्त क्या होते हैं? वो आचरण करके दिखाते हैं। देखो उसी के लिए स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में भक्त भाव अंगीकार करके दिखा रहे हैं। अपनी आचरी जीवेर सिखान, अपनी ना कोई धर्म सिखाना ना जाए। संग आचरण नहीं करें, वो दूसरे के निकट आप बोल सकते, अब बोले भी उससे कोई फल नहीं होगा। गीता में भगवान तो उपदेश दे दिया, मन मना भवो मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्करो, है मैं भगवान हूं ऐसे कह दिया। मत्तम परतर नाना किंचिदस्ति धनंजय, बहुत श्लोक में भगवान कहते, कृष्ण कह रहे मैं भगवान हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। किंतु वही कृष्ण गौरांग रूप में आकर के कहीं नहीं कहा मैं भगवान हूं, और अपने आचरण करके जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु स्वयं हरिनाम करते थे, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। तब चैतन्य महाप्रभु सबके उपदेश दिया। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, यह गया जप सबे करिया निर्बंध, यह इते सर्वसिद्धि होइबे सबार, यह बोई ना बोलिबे ना बोलाइबे यार। प्रभु कहे कहिलाम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही मंत्र, कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलि संतन उपनिषद में है। भगवान जो कुछ करे, चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश दिया शास्त्रों की विधि के अनुसार है। आजकल कुछ लोग उल्टा करके कीर्तन करते हैं, हरे राम करके शुरू कर देते हैं, किंतु नहीं। कलि संतन उपनिषद में कहां से शुरू हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा है, आप लोग को जानना चाहिए कि बहुत लोग उल्टा करके नाम करते रहते हैं, और भी उल्टा सीधा भी व्याख्या भी कर देते हैं।
मन गणंत व्याख्या, मन गणंत मैंने अकॉर्डिंग देयर ओन स्पेकुलेटिव है, वो बोलता रहता है। हरे रामा is actually refers to Rama, Ramachandra. हाँ, हरे राम होते रामचंद्र, तो दैट मीन्स रामचंद्र पहले आया था, इसके बाद कृष्ण आया है, ये भी नहीं है नहीं? अरे उसके पहले तो और युगों के धर्म है ना, महामंत्र है तो वो नहीं है, वो नहीं, विचार गलत करते वो है। ये तो 4 युग के महामंत्र कहा गया है, सत्य त्रेता द्वापर कली, कली युग के महामंत्र हरे कृष्ण करके है। आप इसलिए कारण बहुत लोग विद्वान होने पर भी है शास्त्र के तात्पर्य नहीं जान करके अपने स्पेकुलेटिव माइंड से कह देते हैं। चलो हम कथा को सुना बढ़ाते हैं। ये भक्त के जीवन चरित कैसे है ना, असंग आचरण करके जीवों के शिक्षा देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण संग गौरांग रूप में आकर के भक्त भाव अंगीकार करके है, राधा जी के भाव कांति अंगीकार करके भक्त भाव में आकर के जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। इसमें स्पष्टीकरण दे, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र इया गया जपसबे कोरिया निर्बंध, यह होते सर्वसिद्धि होई बे सवार, यह बोई ना बोले बे ना बोलाई बे यार। महाप्रभु ने स्पष्टीकरण कर दिया चैतन्य भागवत में। ये महाप्रभु ने कहा यही महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। यह बोई ना बोली बे ना बोले बे यार। बहुत बाबाजी लोग अथवा क्या बोले अपसंप्रदाय उल्टा करके व्याख्या करते हैं। कुछ आप करते हैं निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये कहाँ के श्लोक है भाई? पूछा गया, बोला हमारे गुरुदेव सपने में मैं, मेरे सपने के द्वारा तो नहीं होगा, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए है। जहां बोलिए जहां दिवे शास्त्र प्रमाण, व्हाट एवर विल से यू हैव टू गिव द एविडेंस फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। एविडेंस सबको देना पड़ेगा। मन मानी ढंग से सपने में, तो हम भी सपने में कह देंगे ये है, सपने के द्वारा नहीं होगा है। चलो हम आगे की कथा सुनाते हैं। ये भक्त के जीवन चरित, शुद्ध भक्त के जीवन चरित श्रवण करना चाहिए। उसी कड़ी में हमारे नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुण भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी के जीवन चरित कथा हम आप लोगों को थोड़ी शब्द में बताता हूं है। उनकी कथा तो बहुत है, त्रिनाद भी सुनिश्चित के यदि प्रतिमूर्ति देखना चाहते हो तो वही वास्तव रूप में महाराज जी है। त्रिनाद भी सुनिचिन तरव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हम कई बार तो उनसे मिले हैं, वृंदावन में, मथुरा में है, कई बार गुरुदेव के साथ जब हम गए, गुरुदेव के साथ भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज को साथ मिलने की सौभाग्य प्राप्ति हुई। वास्तव उनके देखने से पता चलता है ये किस प्रकार त्रिनाद भी सुनिच की साक्षात मूर्तमान विग्रह है। सबसे कहते हरे कृष्ण, उनके मुख में और कोई नाम निकलते नहीं, हरे कृष्ण है। देखो एक कथा मैं सुनाता हूँ, यद्यपि उनके जीवन चित्र में अनेकों कथाएं अनेक शिक्षाएं है। एक बार कोई डिवोटी जो है भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? नहीं जो हम पाठ करते, भजन रहस्य ग्रंथ, भजन रहस्य ग्रंथ। अच्छा, भजन रहस्य ग्रंथ को पाठ करने के पहले उन्होंने प्रीफेस में लिखा है, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जो प्रीफेस में लिखा है, 2 प्रकार की भक्ति है। एक है वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति है। एक है अर्चन मार्ग और एक है भाव मार्ग। थोड़ी आप लोग सुनिए। एक है अर्चन मार्ग, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर, अर्चन मार्ग में जाना पड़ता है। और एक होता है क्या, भाव मार्ग होता है, रागानुगा मार्ग कहा जाता है। सीधी बात। इसी प्रसंग में वो वर्णन करते हुए कहने लगे, अर्चन मार्ग जो है विधि के अनुसार चलना पड़ता है। जे ठाकुर की अर्चन करें, अर्चन की विधि है, नियम के स्नान करके, शुद्ध सदाचार आदि पालन करके, गायत्री मंत्र आदि जप करके, यथायथ नियम के अनुसार ठाकुर जी अर्चन किया। इसके कहा जाता है विधि मार्ग व अर्चन मार्ग कहा जाता है।
अर्चन मार्ग केवल विधि मार्ग में जाने से उनकी गति कहाँ होता है? वैकुंठ गति होता है। और भाव मार्ग पर, राग मार्ग में भजन करने पर कहाँ पर पहुंचते हैं? गोलोक वृंदावन है। ये सब लिखा है उसमें, भजन की प्रीफेस आप पढ़िए आपके। और फिर जो है अर्चन मार्ग के छोड़ करके कभी उल्लंघन, अर्चन मार्ग के उल्लंघन करके कोई विधि मार्ग, राग मार्ग प्रवेश नहीं करते। इसलिए भक्तिमान ठाकुर लिखते हैं, विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे कराना प्रवेश। जो विधि मार्ग के यथाच 4 नियम के पालन करके, 4 नियम के पालन करते हुए भजन करते करते स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, अनुराग उत्पन्न होगा, तो अब वो धीरे धीरे विधि मार्ग से राग मार्ग में प्रवेश करेंगे, ये कहा जाता है। अच्छा, उसमें उस कथा प्रसंग में वो व्यक्ति ने क्या बताया? देखो, अर्चन मार्ग केवल जो है वो कनिष्ठ अधिकारी के लिए होता है। शास्त्र में ऐसे भी कहा गया कहीं कहीं, ये 3 प्रकार के भक्त होता है, वैष्णव 3 प्रकार के, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ व्यक्ति किसमें ज्यादातर रुचि रखते हैं? अर्चन मार्ग में, सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में, अर्चन करने में है। जैसे हम भागवत में सुनते हैं, जो कौन सा राजा जो ठाकुर जी की सेवा कर दे, अगस्त ऋषि जब पहुंचे, इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, घर संसार छोड़कर जब वन में गए और ठाकुर जी का अर्चन कर रहे थे, और उनके पास में आगे अगस्त ऋषि आ गए, और वो अगस्त ऋषि के उन्होंने सम्मान नहीं दिया, ठाकुर जी की सेवा करने लगे। सोचते हैं ठाकुर जी श्रेष्ठ है। वास्तव रूप में जो है वही लोग सोचते रहते हैं, ठाकुर से कोई बड़ा हो सकता है कोई? लिखा तो है शास्त्र में, मत्तम परतरनाथ किंतु अस्ति धनंजय, हे कृष्ण, हे अर्जुन, मुझसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है ही नहीं। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी उसी विचार को लेकर चलते हैं, जब भगवान से कोई बड़ा कोई कौन होगा है? उसी संदर्भ में वो ठाकुर जी को अर्चन कर रहे थे, और अगस्त ऋषि आए, अगस्त ऋषि को कोई सम्मान नहीं दिया, बैठने का आसन नहीं दिया, ना कुछ किया, तो अगस्त ऋषि ने उनको क्या कर दिया? अभिशाप दे दिया। तो हाथी जैसे व्यवहार करते हो, हाथी जैसे बाजार में चलते हैं, सूंड हिला दुला करके, और किसी की परवाह नहीं करते, जा तू हाथी हस्ती बन जाए। वही गजेंद्र होकर के आ गया श्रीमद् भागवत गजेंद्र मोक्षण लीला, उसी संदर्भ में आ गया। अच्छा, तो उसी संदर्भ में ये है अर्चन मार्ग। कनिष्ठ अधिकारी अधिक रूप में अर्चन पर ट्रेस देते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी के परिभाषा क्या है? अर्चन में वो हरे पूजन जब श्रद्धे से न तद भक्त चाहने से सभक्त है। वो व्यक्ति कैसे कहते? वो व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी है। अर्चन में वो हरे पूजन जब श्रद्धे से न तद भक्त जाने से सभक्त कनिष्ठ कहा जाता है। जो अर्च विग्रह में ज्यादातर अधिक ध्यान देते हैं और भक्तों के प्रति उतने आदर नहीं करते हैं, इसलिए अर्चन में वो हरे पूजा जब श्रद्धा के साथ करते हैं, अर्चन करते हैं, किंतु उसके तत्वज्ञान नहीं होने के नाते वो भक्त की तारतम्य समझ नहीं पाते हैं और भक्ति राज्य में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसे अर्चन में हरे पूजन जो सदी न तद भक्ति चाहने से भक्त प्राकृत स्मृत, उसे कहते हैं प्राकृत भक्त कहा जाता है, कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति क्या करने लगे, इसी प्रकार करने लगे। अर्चन में जो है, जो केवल अर्चन में अपने रखते हैं, भाव रखते हैं, वो कनिष्ठ अधिकारी है। क्योंकि इसमें श्लोक में कहा है कनिष्ठ अधिकारी, श्लोक क्या बताए? अर्चन में हरे पूजन जो श्रद्धेशु न तद भक्त चाहने से भक्त प्राकृत स्मृत। केवल भगवान के ठाकुर जी को अर्चन करते हैं, किंतु दूसरे भक्त को वो सम्मान देना नहीं जानते हैं और शास्त्र ज्ञान नहीं होते हैं उसके। और थोड़ा सा कोई विपद आपत्ति आ जाए, वो ठाकुर जी अर्चा विग्रह के लेकर पानी में डाल देंगे। इतने श्रद्धा करते हैं। कोई थोड़ा बहुत कुछ हो गया ना, बस है। यहां तक मैं सुनता हूं उसके बेटी स्कूल में फेल हो गया और वो अर्चन कर रहा था, बोले ठाकुर जी के लिए फेल कर, ठाकुर जी हमारी बेटी के तुम्हें फेल करा दिया। ठाकुर जी फेल करा दिया क्या? मैं सुनता रहता हूं। अर्चन छोड़ देते हैं। मुझे बताया एक वक्त, मुझे बताया जब रिजल्ट है उस दिन, वो मैंने उसकी बेटी के रिजल्ट है और उस दिन वो ठाकुर जी अर्चन कर रहे थे और सुना पड़े उसकी बेटी फेल हो गई।
और इतने उनके गुस्सा आ गया, ठाकुर जी के लेकर के फेंक दिया है। तो यही श्रद्धा है। इसके तात्पर्य है कनिष्ठ अधिक कोमल श्रद्धा है, माने वेरी सॉफ्ट फेथ है। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, चैतन्य चरितामृत कहते हैं जो कनिष्ठ भक्त कौन है, जिसकी अत्यंत जो है कोमल श्रद्धा है, वेरी सॉफ्ट फेथ है, किंतु सामान्य रूप में श्रद्धा के साथ कहते हैं। चलो इस कथा प्रसंग में बोलते बोलते वो वक्ता ने क्या बोला, ये देखो हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जो है अर्चन में बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा, ये वास्तव सत्य है। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज अर्चन में, ठाकुर जी के जो अर्चन में वो बहुत प्रसिद्ध थे। जहां पर मंदिर स्थापना हो है, बात जहां पर गृह प्रवेश हो, जो कुछ भी है अर्चन आदि में, यहां तो ठाकुर जी की मंदिर स्थापना, सब की वो क्या बोले गंबुज आदि ध्वजा आदि रोपण में वही भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के सब बुला प्रसिद्ध थे हैं। तो सभी लोग उनके बुलाते थे अर्चन मार्ग में, जहां जहां ठाकुर जी के अर्चन हो है उनको बुलाते थे। इसलिए उन्होंने कथा प्रसंग में यह कहा दिया, ये हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी जो है अर्चन में जो है बहुत रुचि रखते थे, ये कथा कहा दिया। तो उसी कथा में उनके एक शिष्य बैठे हुए थे, किसका, भक्ति पुरी गोस्वामी। उनके वो तो वास्तव अर्थ नहीं समझ करके उनके मन में बहुत दुख आया। क्या दुख है, जे मेरे गुरुदेव जो कनिष्ठ अधिकारी है, क्योंकि पहले कहा दिया कनिष्ठ अधिकारी अर्चन में रुचि रखते हैं, किंतु ऐसे नहीं, उत्तम अधिकारी तो अर्चन भी करते हैं। जीव गोस्वामी पाद भी लिखा शास्त्र में है, ये कुंज से अर्चनम कुंज सेवायम, जो उत्तम भागवत जो अर्चन आदि करते हैं उसे कुंज सेवा मानना चाहिए है। आज समझ में, ये उत्तम अधिकारी जो अर्चन करते हैं उसके अर्चन क्या है, कुंज सेवा होता है, राधा गोविंद की कुंज सेवा। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद लिखा, राधिका अर्चयामी, वहीं पर राधिका में अर्चन मैं करता हूं। तो राधिका अर्चन करना कौन करते हैं, राधिका अर्चन कनिष्ठ अधिकारी कर सकते क्या, कौन कर सकते हैं, उत्तम अधिकारी है। विविध कुसुम बिंदु धम्मिलधारी विगर्द मधुगुर्ण केकी पिंच प्रशस्तिम मधुबिंब दिगुर्ण तंगुलराग स्फुरतमल कपलंग राधिका अर्चयामी, स्पष्टीकरण कर दिया है। किंतु साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। साधारण लोग सोचते हैं जो अर्चन जो करते हैं वो केवल कनिष्ठ अधिकारी है, किंतु ये बात नहीं है। कनिष्ठ मध्यम उत्तम तीनों भक्त जो है अर्चन करते हैं, किंतु भाव के ऊपर निर्भर करते हैं, है कि नहीं है। सबके भाव एक नहीं है, इसलिए अर्चन करना मतलब जो है कनिष्ठ अधिकारी ये समझना नहीं चाहिए। उत्तम भागवती अर्चन करें, जैसे रूप गोस्वामी पाद मैंने भजन करते थे और राधा जी के ऊपर एक इसी श्लोक लिख रहे हैं, विविध कुसुम बंदे धम्मिलधाटी, अपने स्वरूप में भाव में स्थित होकर के क्या विचार करें, ललिता देवी के आदेश प्राप्त करके रूपमंजरी सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन किया है, और चयन करके पुष्पों को चयन करके राधा जी के जो है जुड़ा पर सजाया, और राधा जी के केशों के श्रृंगार की फूलों के द्वारा है। आज समझो, शायद दक्षिण देश में स्त्रियों के जो है ये विशेष प्रसिद्धि है कि नहीं। और विशेष करके हम देखते हैं जब हम उधर चल जाते हैं अमेरिका में, वो क्या बोले हवाई में जाते हैं, हवाई में भी उसी प्रकार स्त्रियों के जो है ये फूलों के केशों के श्रृंगार बहुत प्रसिद्धि है। मैं देखा, मैं अपने आंखों से देखा हवाई में है। तो देखो सुंदर रूप में श्रृंगार राधा जी, एक हमारे रूपमंजरी ने किया कि सुंदर रूप में राधा जी के केशों के जो है फूलों के दर श्रृंगार किया है। और इतने समय एक मोर है आगे देखा, राधा जी के केशों के श्रृंगार देख करके वो लज्जित हो गए। क्यों कहते हैं सबसे अभिमान किस में रहता है, मोर में। मोर में क्या अभिमान रहता है, वो जो उनके पेट का फेदर जब फैला करके नृत्य करते हैं सब लोग देखते रहते हैं। आपने देखे ना, गोवर्धन में जाइए व वृंदावन में जब परिक्रमा करोगे, परिक्रमा में देखोगे मोर क्या करते हैं, अपने पंखा के जो है फैला करके और नृत्य करते हैं, और इतने सुंदर लगता है। इसलिए मोर का एक अभिमान है, ये मेरा सौंदर्य था है। आज समझते, एक तो स्वाभाविक रूप में स्त्रियों में एक स्वाभाविक रूप में अभिमान रहता है, मैं सुंदरी हूं
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो मोर में एक अभिमान है, ये मैं सबसे सुंदर हूं, जो मुझे देखने के लिए सब लोग आकृष्ट होते हैं। यहाँ पर मोर आकर के जब पंखा फैला कर देखो, आप कथा छोड़ करके वहीं पर चले जाओ। अब बात ये सत्य है कि नहीं है? और उस समय मोर मयूरी जब केक का ध्वनि करते हैं और उसमें इतना आनंद होता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद इसी श्लोक के लिख रहे, विविध कुसुम बिंदु धमिल धारी विगत मधुगुण के की पिंच प्रशस्ति। तो मोर देखा कि कहां राधा जी की केस की कलाप, केस श्रृंगार फूलों के द्वारा, और कहां मेरा पंखा। उनके पास तो मैं बिल्कुल इनसिग्निफिकेंस, तुच्छ। इसलिए इस विचार करके मोर कह कि लज्जित होकर के दौड़ कर भाग गए। रूप गोस्वामी इस श्लोक विविध कुसुम बंदी दमिल धारी विगत मधुगुण के पिंच प्रशस्ति। अच्छा, इसके बाद फिर रूप गोस्वामी पाद और एक लीला को वर्णन कर रहे हैं दूसरी लाइन में। क्या लिख रहे हैं जी? ललिता देवी के आदेश प्राप्त करके रूप मंजरी ने सुंदर एक पान की बीड़ी बनाया। पान की बीड़ी है बीटल नट्स कि पान को बीड़ी बनाया। पान ये बरसाना में है ना, पान के प्रसाद लगते हैं। शायद आप लोग बरसाना गए, आप लोग वहीं पर पान की प्रसाद लगते हैं ठाकुर जी के। जितने मंदिर है सबसे मंदिर में जो है राधा जी के जो लाडी लाल जो है वहीं पर राधा जी के पान की प्रसाद विशेष प्रसिद्ध है। यदि पुजारी आपके पान के प्रसाद दे दिया, समझना चाहिए राधा जी की कृपा आपके ऊपर हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, उधर सबसे भी है। लड्डू कचौड़ी के लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, कहते महाराज हमें राधा जी की जो है प्रसाद, राधा जी के प्रसाद क्या है? पान प्रसाद लगते हैं। आप जो कभी बरसाना जाइए, पुजारी के बोलिए, पुजारी आपको जरूर देंगे पान के प्रसाद, और तब समझेंगे आपकी कृपा हो। हाँ भाई चलो, रूप मंजरी ने किया कि सुंदर एक पान की बीड़ी बनाया, अब बना करके राधा जी को दे दिया। राधा जी ने किया कि वो पान के जो है संग अपने प्राणकांत गोविंद के दे दिया, कृष्ण के दे दिया। कृष्ण पान चिबाने लगे। पान चिबाते कृष्ण के जो है अधोरुष्ठ अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स बिल्कुल लाल लाल वर्ण हो गया, इतने सुंदर है। और राधा जी ऐसे देख रही थी, आंख फाड़ करके टपटपा करके देख रही थी। देखो राधा जी की भावना कृष्ण की भावना कितना अंतर हो जाता है। कृष्ण राधा जी सोचने लगे कृष्ण की जो अधोरुष्ट इतने लालिमा हो गए हैं, तो शास्त्र में कहा गया ये अनुराग के चिन्ह है। आजकल जो माताएं जो वो लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, जो इसे कहते हैं ये हमारी है वो कृष्ण ठाकुर जी से आए हैं सब। ये क्या है? अनुराग के चिन्ह है। मैं इसलिए कह रहा था वास्तव जो है ये अनुराग के चिन्ह है। समझ में आता है? उसमें शास्त्र में हमारे जीव गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं ये अनुराग के चिन्ह क्या है? अत्यंत लाल लालिमा हो। अच्छा, कृष्ण वो राधा जी को सोच रहे हैं, कृष्ण की अधोरुष्ट को देख करके ओहो कैसे सुंदर राधा जी के जो है कृष्ण के जो है अनुराग, हमारे प्रति अनुराग है। ये राधा जी के विचार है। और कृष्ण के विचार दूसरी तरफ। कृष्ण विचार करने लगे राधा जी ऐसे आंख फाड़ करके मेरे तरफ देख रहे हैं, मतलब मेरे पान प्रसाद को चाहते हैं। कोई व्यक्ति खा रहे हैं, वो जो आंख ऐसे फाड़ करके देखे तो समझने से हम इसे कुछ लेना चाहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, बात सत्य ही कि नहीं है? तो कृष्ण के विचार दूसरी हो गया। कृष्ण क्या करने लगे? राधे जब आंख फाड़ करके देखने लगे, कृष्ण विचार करने लगे मेरे प्रसाद को चाह रहे हैं, वो मांग रहे हैं। राधिकार पक्कन विविध व्यंजन आनंदी भोजन करे न जत सखागन है। ये समझता हमारे कीर्तन में है, भक्ति ठाकुर कीर्तन में। अच्छा चलो, कृष्ण विचार करने लगे जे राधा जी हमारे पान प्रसाद चाह रहे हैं, इसलिए राधा जी ने किया कि अपने पान प्रसाद जो दूर चिवा हुआ था थोड़ा बहुत राधा जी को देने लगे। और राधा कैसे फाड़ दी? भाई ये प्रेम के राज्य की कथा है, ये कोई जड़ की कथा नहीं है। राधा जी मुंह के ऐसे फेर लिया तो कृष्ण ने क्या कि जबरदस्ती के राधा जी को आलिंगन करके उनकी गाल में क्या कर दिया है, समझे, उनकी ये चीख में क्या कर दिया? चुम्बन कर दिया। और इतनी सुंदर है वो पड़ गया, क्या बोले? लिप्स मार्क पड़ गया, इंप्रेशन आ गया है। उसके अमर भक्ति ठाकुर कहते हैं जमुना सलील आहर ने गया बुझीब जुगल रस आरे प्रेम मुग्ध हुए पागले ने प्राय गाइब राधार जस। अमर भक्ति ठाकुर कह रहे हैं मैं जमुना में जाऊंगी पानी भरने के लिए,
और इस समय राधा कृष्ण के ऐसे लीला को देख करके मैं सखी समाज में आकर के कीर्तन करूंगा। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर लिख रहे हैं, जमुना पुलिन अहरने गिया बुझिब जुगल रस, और प्रेम मुग्ध हये पागले ने प्राय गाइब राधार जस। है कि नहीं है, किंतु वो इंग्लिश वाला जो गीत कुछ है ना, मैं जो बता रहा हूं ना, आप पढ़ करके देखिए। आप तो इंग्लिश जानते हैं ना, पढ़ कर देखिए। है देखिते देखिते भूली बाबा कभी निज स्थूल, इस कीर्तन में आपको मिलेगा। और ये सब कीर्तन है, मैं जो करूं एविडेंस दे रहा हूं शास्त्र से। कहते महाराज क्या अपन मन से बता रहे हैं? नहीं, हमारी गुरु परंपरा से है। देखो मेरे कहने की तात्पर्य है, अर्चन मार्ग मतलब नहीं है कनिष्ठ अधिकारी के, किंतु उसमें जो बैठे हुए थे वो उनके मन में यही लगा, ये मेरे गुरुदेव भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ये कनिष्ठ अधिकारी है, किंतु वो समझ में सबके भाषा सबके कथा सबके समझ में नहीं आता है। आज समझ में नहीं, इसलिए उन्होंने उनके मन में बहुत दुख हुआ, मेरे गुरुदेव के कनिष्ठ अधिकारी कहा दिया। वो दौड़ करके भाग गए और आकर के भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज आकर बोले, गुरुदेव ये व्यक्ति जो, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा, ये व्यक्ति जो ये किया भजन से पाठ कर रहे थे, आप पाठ करते करते बताया आप कनिष्ठ अधिकारी हो, कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव है। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, अपने जपमाला के सिर पर रख ले, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छी बात है। भक्ति देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज क्या बोले, ये देखो हम इतने साल तो भजन कर रहा हूं, मैं भी नहीं सोचा ये मैं वैष्णव, आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हब आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हब आमी, प्रतिष्ठासिया हृदय दूषिबे होइब निरयगामी। भक्तिवंत ठाकुर कीर्तन में करें, आमी तो वैष्णव, मैं वैष्णव हो गया, ये बुद्धि यदि आ जाए मैं दूसरे के सम्मान दे नहीं सकूंगा। आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हुआ आमी, प्रतिष्ठा आसिया हृदय दूषिबे होइब निरयगामी। लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाए और मैं नरक में चले जाऊं। ये भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज देखो कैसे उत्तम भागवत होकर के करें। जब मैं इतने दिन भजन साधन किया, मैं आज तक भी नहीं सोचा मैं वैष्णव हूं, है? किंतु आज मेरे मन में बहुत उल्लास हो रहा है। एक वैष्णव ने कहा ये वैष्णव है? कौन सा वैष्णव? कनिष्ठ वैष्णव। इससे अपेक्षा श्रेष्ठ दान क्या होता है? जो मैं जीवन में नहीं सोचा मैं वैष्णव, किंतु वैष्णव ने कहा मैं वैष्णव, तो मेरा मन में उल्लास हो रहा है जे इस जन्म में मैं तो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव हुआ। क्यों? वैष्णव जो हमें जो प्रतिष्ठा देते हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। वैष्णव प्रतिष्ठा तर्क निष्ठा, वैष्णव लोग हमें प्रतिष्ठा देते हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जड़री प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, जड़ जगत के लोग मुझे प्रतिष्ठा देते हैं, वो क्या है? सुअर के पैखाने के भांति अत्यंत घृण्य अपवित्र माना जाता है। किंतु वैष्णव लोग हमें जो देते हैं वो श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कहने लगे, हरि बोल हरि बोल। आज मेरा उल्लास इसलिए हो रहे, एक वैष्णव मुझे क्या बोला? मैं वैष्णव है। इस जन्म में कनिष्ठ वैष्णव, अगले जन्म में और भी भजन करेंगे और अगले मध्यम अधिकारी वैष्णव बनेंगे और इसके बाद और भी भजन करेंगे, उत्तम भागवत बनेंगे। इसे तुम्हारे दुख होने के क्या कारण क्या है? देखो जो उत्तम भागवत होते हैं वो सबसे क्या सोचते हैं? मैं सबसे छोटा हूं, है? आया समझ में? मैं भी कहता हूं। आप लोग कहां बैठे हुए हैं? कहां पर? जमीन पर बैठे हैं। और मैं कहां पर बैठा हूं? तखत पर बैठा हूं। इसको तखत मानिए। ये हमारे शास्त्र में कहते हैं, जो जमीन पर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? जमींदार कहते हैं। जमीन पर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? जमींदार। और जो तखत पर बैठते हैं चौकी कहा जाता है। चौकी कहते हैं ना, चौकी। चौकी की जो बैठते, चौकी पर बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है? चौकीदार कहते हैं। तो अच्छा बताओ, जमींदार श्रेष्ठ है कि चौकीदार श्रेष्ठ है? चौकीदार श्रेष्ठ कैसे हुए? जमींदार श्रेष्ठ है। जमीन जिसका है जमींदार कहते हैं। तो इसलिए हम इसलिए कहते हैं कोई ऊपर में बैठ गया वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, ऐसे भी बात नहीं होता है।
जो नीचे बैठ गया वो कनिष्ठ हो जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में, हमारे बृहद भागवतम ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी विचार को दिखा। वक्ता कौन था? भागवत की वक्ता कौन था? सुखदेव गोस्वामी। श्रोता कौन था? परीक्षा महाराज कहाँ बैठे हुए थे? जमीन पर बैठे थे ना। और सुखदेव गोस्वामी कहाँ बैठे थे? आप लोग चित्र देखे होंगे से, वैशासन ऊपर बैठे हुए थे। अच्छा बताओ, इसमें श्रेष्ठ कौन थे? परीक्षित महाराज कि सुखदेव गोस्वामी पाद? आप बताओ। सुखदेव गोस्वामी। आपका कोई एक बताइए, जैसे आपके मन में इच्छा है। हाँ, देखो इसमें श्रेष्ठ कौन है? परीक्षित महाराज। हाँ, परीक्षित महाराज श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी पाद है, वो तो सुख पक्षी है। राधा सुख, राधा प्रिय सुख, उनके जो परिचय दिया गया। और परीक्षित महाराज कौन है? गोपी भाव प्राप्ता, संग राधा जी के जो है सखी बताया गया। आप बृहद भागवत में पढ़िए, हम नहीं करें। बृहद परिचय इस प्रकार दिया है, गोपी भाव प्राप्ता, गोपी भाव युक्त, गोपी स्वरूप है। और ये सुख पक्षी है, राधा जी के सुख है पक्षी है। तो कौन श्रेष्ठ हो गया? परीक्षित महाराज। किंतु इस परीक्षित महाराज नीचे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, तो इसलिए कोई नीचे बैठ करके श्रवण करते हैं, इसके मतलब नहीं है वो छोटा है, और ऊपर बैठ करके व्यसन पर बड़े वो श्रेष्ठ हो जाएगा, ऐसी की बात नहीं है। तो हम इसलिए कहें, देखो हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज उत्तम भागवत होते हुए पर भी अपने को कैसे मान रहे हैं। भले इसी प्रकार ही कहा जाता है, जो श्रेष्ठ होते हैं ना, अपने के सोचते हैं मैं सबसे छोटा हूं। ये साधारण लक्षण होता है। जैसे हमारे चैतन्य भागवत में फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता स्वभावतार है अनुखान। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, फलवंत वृक्षार, वृक्ष में जब फल लग जाता है, फल के जितने भी डाल जो है, शाखाएं जो है, अपने आप धरती की तरफ झुक जाता है। अच्छा, तात्पर्य क्या है? कृष्ण के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? उसके दीनता करा देते हैं, दीनहीन आ जाता है। जैसे देखो नंद महाराज उद्धव जी के बोले, उद्धव तुमने कहा मैं महाभाग्यवान हूं, मेरा बेटा कृष्ण मुझे छोड़ करके मथुरा चले गए, और आप हमें बताया जे हे नंद महाराज आप सौभाग्यवान हो, क्यों? कृष्ण भगवान आपके पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए आप कह रहे हैं जब मैं भगवान हूं। अच्छा, नंद महाराज ने उद्धव ये बताओ, किसी के एक महान रत्न मिला था, उसके पता नहीं था वो रत्न था, है ही गॉट वैल्यूएबल ज्वेल्स, है रत्न मिला था, किंतु उसके पता ही नहीं था वो रत्न महामूल्यवान है। किसी कारण से रत्न क्या हो गया? वो खो गया। कोई व्यक्ति जब वो रत्न के खोजने लगे, वेयर इज दैट, कहाँ है वो, कहाँ है, और उसके लिए तड़पने लगे। कोई व्यक्ति आकर, फिर दूसरी व्यक्ति आकर के लिए, ओहो आपको रत्न मिला था, आप कैसे भाग्यवान हो। अच्छा, वो कहेंगे क्या मैं भाग्यवान हूं? एक तो मुझे पता ही नहीं था रत्न था वो, मतलब वैल्यूएबल ज्वेल्स था, और दूसरी है उसको मैं खो दिया है। तात्पर्य क्या? नंद महाराज ये कहने लगे, ये हम कभी नहीं सोचते हैं कृष्ण भगवान है, मेरे पुत्र कृष्ण भगवान है, किंतु आपने अभी आकर के सुनाया कृष्ण भगवान थे, और वही भगवान को मैं खो दिया, माने भगवान मुझसे छोड़ करके कहां चले गए? मथुरा चले गए, तो मैं भगवान हूं। है, समझ में आ रहा है? आपके पास इतने महामूल्यवान द्रव्य था, वो खो गया, और आप उसे कैसे हो? आप महाभाग्यवान हो। है? हे उद्धव, तुम ऐसे विद्वान हो करके और ऐसे शब्द करो। हाँ, ये एक बात सुनो, हम लोग तो कभी भगवान के, कृष्ण के भगवान नहीं समझते थे। कृष्ण एक, हम जानते कृष्ण हमारे पुत्र है। जित भगवान एक ही हम समझते हैं, जो हमारे घर में जो सालग्राम नारायण है वही भगवान। हमारे पुत्र कृष्ण भगवान ये हम नहीं जानते है। अब तुमने आज कहा दिया जो भगवान मेरे पुत्र भगवान है और मैं भगवान हूं, और भगवान कहीं खो करके बैठा हूं। और दूसरी बात है, देखो मेरे पुत्र चले गए, मैं अभी तक जीवित हूं,
हम रामायण से सुना। नंद महाराज कहने लगे, रामचंद्र जब वन में चले गए, रामचंद्र की वनवास कथा आप जानते हैं ना, है, उस समय दशरथ महाराज क्या करने लगे, हराम 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 करके शरीर छोड़ दिया, क्योंकि भगवान की विरह व पुत्र स्नेह की वो सहन कर नहीं पाया है। और मैं अपने पुत्र की खो दिया और कि मैं अभी तक इस शरीर में प्राण रखा। तो कौन श्रेष्ठ है, दशरथ महाराज और नंद महाराज है। भगवान रामचंद्र जब वन में चले गए, दशरथ महाराज शरीर छोड़ दिया, हराम हराम को शरीर छोड़ दिया। रामायण में है ना, आप लोग रामायण टीवी देखते हैं सर, है, तड़पते तड़पते शरीर छोड़ दिया, हराम हराम कर। और मैं अपने पुत्र को खो करके और मैं अभी तक जीवित हूं। तो कौन श्रेष्ठ है आप बताइए, दशरथ महाराज श्रेष्ठ है कि नंद महाराज श्रेष्ठ है? आपके विचार क्या है? नंद महाराज। क्यों? बेटा के खो दिया, भगवान के खो करके। हाँ, आपके विचार ठीक है, भले ही आप जैसे भी कहा दिया, कहा तो दिया कहा तो दिया, ये नंद महाराज श्रेष्ठ है। क्यों? देखो, दशरथ महाराज पुत्र विरह में तो शरीर छोड़ दिया, किंतु रामचंद्र के विरह में छोड़ दिया, किंतु दशरथ महाराज ये नहीं सोचा जे 14 साल के बाद, उनके तो कॉन्ट्रैक्ट था 14 ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स ही हैव टू रिटर्न बैक है। किंतु 14 साल के बाद जब रामचंद्र लौट करके आएंगे अयोध्यापुरी में, तो रामचंद्र पिताजी के नहीं देख करके रामचंद्र सुखी होंगे कि दुखी होंगे? आप ये बताइए। दुखी होंगे। किंतु दशरथ महाराज ये नहीं सोचा। प्रेम की परिभाषा का, प्रेम अपने सुख नहीं देखता है, प्रेम अपने प्रियजन के सुख देखता है। किंतु दशरथ महाराज ये नहीं सोचा, ये भगवान रामचंद्र 14 साल के बाद, उनसे कॉन्ट्रैक्ट था 14 साल के लिए वन में जाए, 15 साल नहीं, 14 साल के लिए, फिर लौट करके आ जाएंगे, है। ये और एक बार था भरत के राज्य देना, भरत के तो राज्य दे दे, रामचंद्र कहने हमें कोई राज्य की जरूरत नहीं है। रामचंद्र तो बहुत सुनकर प्रसन्न हो गया। जब कैकेयी ने कहा ये 14 साल के लिए तुम्हें वन में जाना है और मेरा बेटा भरत राज्य होगा, रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र बहुत अच्छी बात है, मेरे भाई भरत राजा हो, ये तो मैं भी चाहता हूं, है। राजमुकुट पहनना ये क्या है, ये कंटक जैसे कांटे के बांधे लगेगा, है। और दूसरी बात है, और मेरे वन में जाना ये भी आनंद की बात है 14 साल के लिए। देखो रामायण में स्पष्टीकरण कर रहे, वाल्मीकि रामायण में लिख रहे, रामचंद्र कहने लगे देखो वन में रहेंगे, सात्विक वास, वनस्तु सात्विक वास, पवित्र नदी में स्नान आदि करेंगे, मैं संत महात्मा के साथ और निश्चिंत होकर के वन में भ्रमण करेंगे, है। इससे क्या, राजा में राजा बने तो सदा सर्वदा चिंता बना रहता है। जो जितने पद प्राप्त करते अधिक माने उच्च प्राप्त करते उनके अधिक क्या होता रहता है, चिंतन होता रहता है। उनके सदा सर्वदा है चिंतन होते रहता है, नींद नहीं आती उसको। और भगवान रामचंद्र के हमें निर्भर होकर, निडर होकर के, निश्चिंत होकर वन में निवास करेंगे, संत महात्मा के संग करेंगे, हरि कथा भगवत कथा आदि श्रवण करेंगे। इससे सौभाग्य क्या है? इसलिए लिखते हैं, शास्त्र में लिखा गया, ये जब रामचंद्र जब सुना जे मैं वन में जाना है, रामचंद्र प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार लिखते हैं, छोटे बच्चा को यदि नया कपड़ा दिया जाए, उत्सव में जैसे नया कपड़ा दिया जाता है ना, आपके पता नहीं इधर कौन कौन उत्सव होता है, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, अथवा और होता है ना, है दीपावली, उस समय नई कपड़ा दिया जाता है, ये रिवाज है। तो छोटे बच्चे के जब नया कपड़ा देते हैं ना, बच्चा इतने उल्लास होता है, पुराने कपड़े को अपने फेंक देते हैं, भैया ये नया कपड़े मुझे पहनाओ, उत्कंठित होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने क्या कि सुन करके प्रसन्न हो गया और मुनि के वेश धारण करके चल पड़े, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और रामचंद्र जब चले गए, दशरथ महाराज प्राण त्याग दिए। क्या दशरथ महाराज यही नहीं सोचा ये 14 साल के बाद रामचंद्र जब लौटेंगे अपने पिता को नहीं देख करके दुखित हो जाएंगे? प्रेम की परिभाषा है ना, देखी आपन सुख सभी वंचित तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार भाई महासुख से ही सुख मोर सेवा वर्ज। चैतन्य चरितामृत में लिखा है। प्रेम की परिभाषा है अपने सुख के नहीं, है अपने प्रियजन के सुख हो, है। मां संसार में देखो रसोई बनाते हैं,
उनके खाना कब खाती है वो? पतिदेव के पहले खा लेती है, बेटा के पहले खा लेती है। कब खाती हो आप बताओ? सबको खिला पिला के, और यदि बच्चे अब उसी समय कोई अतिथि आ गया है, नहीं खा करके सेवा कर, हो सकता है उपवास में रहे, बस सामान्य रूप से कुछ चिड़वा अथवा कुछ खा ले है, किंतु सबको रसी बना करके, सबको खिला पिला करके है, और अपने जो बच्चे हैं उसको खा दे, और उसमें उसको सुख मानते हैं है? विशेष कर माता में ये विशेष वैशिष्ट है, स्त्री जाति में ये विशेष वैशिष्ट है। सबको खिला पिला करके आत्मीय परिजन है, सास ससुर है, पति पुत्र, सबको खिला करके है, और सब प्रसन्न होते हैं, बोले हमारे प्रसाद सुंदर बनाया है, और सुन करके उसे प्रसन्नता आता है। आते कि नहीं आता है? आप बताइए, जो माता लोग है जब कहते हैं हाँ आपके प्रसाद जो है इतने सुंदर था, हो सकता है ज्यादा नमक हो गया तो वहां भी बोलो ये इतने सुंदर बना, देखो वो तो खाई नहीं है अभी तक। हाँ हाँ बहन जी आप जो बनाए ना इतने जो है गोविंद की महाप्रसाद, बोलो वृंदावन गया है। मैं ये नहीं कर रही ज्यादा नमक है, ठीक बनाती है, हाँ वास्तव रूप में ठीक बनाए है। तो माता में ये एक विशेष गुण है, भक्ति उसी की कहा जाता है। इसलिए हमारे चैतन्य जो है नागनी अपन दुख सभिवांचित तार सुख, मोर यदि दिया दुख तार है मोर सुख, सही मोर सुख वर्ज्य। प्रेम उसी प्रकार है, प्रेम अपने सुख नहीं देखते हैं, अपने प्रियजन के सुख देखते हैं। किंतु दशरथ महाराज वही नहीं सोचा, और नंद महाराज प्राण को किस लिए रखे? जाने के समय इतने ही कहा दिया, परस्सु आयस्य में इति दौतुकम, भागवत में लिखा है। कृष्ण कहने लगे हे ब्रजवासी जन, आज मैं जा रहा हूं मथुरा, काल कंस से वध करूंगा, परसों में लौट करके आ जाऊंगा। कृष्ण आएंगे, यही जो है उनकी आशा है, किंतु आए नहीं, क्योंकि आएंगे परसों आयस्य में इति दौतुकम। और कृष्ण जब आएंगे, जब देखे जो नंद महाराज नहीं है, जसोदा मैया नहीं है, गोपियां नहीं है, क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे? कृष्ण दुखित हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण के सुख के लिए सारे ब्रजवासी लोग अपने प्राण रूपी कीड़ा को धारण करके रखे, प्राण को धारण कर इसलिए रखे, उसी का प्रेम। जैसे आपने जो उत्तर दिया ये फुल मार्क्स आपके हो गया। जी हाँ, नंद महाराज की प्रेम श्रेष्ठ है, रामचंद्र क्या बोले, दशरथ महाराज अपेक्षा नंद महाराज की प्रेम की श्रेष्ठता बताया गया। यही तो भागवत में दिखाया गया। उससे अपेक्षा से गोपियों की प्रेम की महिमा, उस गोपियों भी श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधिका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। हम इसलिए कह रहे हैं भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जीवन चरित्र अति अद्भुत है। पढ़ो है। फिर अभी 2 बज गया, अब लोग के प्रसाद भी हो, थोड़ा आरती कर लें, फिर आरती प्रसाद भी सब है। तो उनके जीवन चरित कथा जो अतीब सुंदर है। कई बार उनकी शिष्य के मुखारविंद से मैंने श्रवण किया, ग्रंथ भी अध्ययन किया है। प्रभुपाद के इतने प्रिय पात्र थे, जितने भी प्रकाशन विभाग जो है पब्लिकेशन है। अनुराग के लक्षण जो है, अनुराग के जो है, अनुराग के कलर होता है ये थोड़ा रेड वर्ण होता है। शास्त्र में लिखा है, जैसे देखो हर राग के बारे, हर जो है प्रेम के एक एक कलर होता है। हाँ समझिए, उसमें लिखे, उसमें उज्ज्वल मुनि ग्रंथ के टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जो है वो लिखा है। अनुराग के रंग कैसे होता है? वो वर्ण होता है, अरुण वर्ण होता है। हाँ समझे, अरुण वर्ण के दिखाया गया है। ये जो वैष्णव लोग, सन्यासी लोग, जो एक कपड़े जो पता है, अरुण वर्ण किस लिए कहा जाता है? ना राधा जी के प्रति हमारे अनुराग उत्पन्न हो, प्रेम में अनुरक्त हो है। श्रृंगार रस की कलर कैसे होते हैं? श्याम वर्ण होते हैं। श्रृंगार श्याम इति विष्णु दैवतः, विष्णु दैवत नाम से कोई एक रसाचार्य, उन्होंने ये सब वर्णन किया गया, शास्त्र में लिखा है।
अब इसको देखो कहाँ प्रमाण मिलेगा आपके भजन रहस्य ग्रंथ में, गुरुदेव की जो टीका है उसमें आपको मिलेगा। So is that the reason why they painted Srila Gurudev's Samadhi red? That is another things, different devotees, different their mood. So I am not giving any conclusion. Just I give the example. So this is the बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये भी अनुराग है कि ना, देखो इनके जो है जो पर्दा जो है कितना सुंदर है। हाँ समझिए, इस समझ तो अनुराग के चिन्ह कहा गया है इसमें, इसलिए शास्त्र में लिखा गया है। मैंने जो आप ये बताया, ये राधा जी कृष्ण जो 5 बार थे, राधा जी को अनुराग के चिंतन करें, ये मेरे प्रति कितने अनुराग है। क्योंकि जो उत्तम भक्त होते हैं, उत्तम भक्त कोई वस्तु देखते हैं उसके उद्दीपना होता है, उद्दीपना स्टिमुलेशन है। क्योंकि प्रेम राज्य की जो होता है उसमें 4 वस्तु होता है उसे क्या क्या होता है, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी है। स्थायी भाव के पार आता है विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। विभाव जो होता है फिर होता है आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन फिर 2 प्रकार के होता है, आश्रय आलम्बन, एक विषय आलम्बन। ये उद्दीपन जो होता है वस्तु की देख करके उनके इष्ट देवता के प्रति एक हृदय में जो उल्लास होता है उसके उद्दीपन कहा जाता है। जैसे भक्तिमोहन ठाकुर लिख रहे हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर है। ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ो तो पराण। ये सब मतलब जितने भी इसमें कहा गया है सब क्या उद्दीपन कराता है। जो उत्तम भागवत होते हैं, रसिक भागवत होते हैं, उनके उद्दीपन होता है। कृष्ण के सारे लीलाओं उनको देख करके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, एक बार मैं पाठ कर रहा था, कहते कहते कहने लगे, अच्छा महाराज ये बताओ पूतना मोक्षण लीला आपके क्या उद्दीपन है। भगवान की कथा जो है, जैसे मैंने एक कथा कहा दिया, ये उत्तम भागवत होते हैं, कोई भी वस्तु देखे उनके भावों के अनुसार उत्पन्न हो उद्दीपन हो जाता है। कोई सुंदर एक लड़की को देखा, देख करके उसके हृदय में क्या उद्दीपन होता है, ब्रज गोपी को उद्दीपन हो जाता है। गोपियों की सुंदर रूप शास्त्र में वर्णन है। राधा जी के चित्र पर वर्णन किया गया, कितने सुंदर जो है उनके घुंघराले बाल, कैसे सुंदर आंख, कैसे उसके हाथ पैर, सब वर्णन है। जैसे आप शास्त्र पढ़े, राधा जी के वर्णन है कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरवा पीत नांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरवा है। कृष्णदास के विराज बोले तो राधा जी के वर्णन होते जा रहे। तो उत्तम भागवत जहां पर देखते हैं उसके वर्णन होते जाता है। तो कृष्ण के सारे लीला भी उसकी प्रकार है। सुंदर एक लड़की को देख करके उत्तम भागवत राधा आदि गोपियों की उद्दीपन हो जाता है, चिंतन आदि करते हैं। क्योंकि वो स्थूल वस्तु नहीं देखते, सावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देव स्फूर्ति। स्फूर्ति में स्टिमुलेशन होता है। तो इस प्रसंग में मैंने कहा दिया है जी उद्दीपन होता है। तब तो कहने लगे अच्छा महाराज जी बताइए, कोई कुरूपा स्त्री को देख करके उसे क्या उद्दीपन होगा। भाई ये जगत चित जगत के विकृत प्रतिफलन, ये जड़ जगत है। कोई एक लड़की को देखा, देखने में बहुत कुरूपा है, तो कुरूपा लड़की को देख करके उनके क्या उद्दीपन होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, पुतना के उत्पन्न हो जाएगा। पुतना वध किया कि नहीं भगवान। तो जो उत्तम भागवत होते हैं, जो कुछ भी दर्शन करते हैं, सब चित जगत की प्रतिफलन मान करके उसके हृदय में उद्दीपन होता जाता है। छोटा से पत्थर को देख करके गिरिराज समझते हैं आज में कि छोटे से नदी को देख करके उसके क्या उद्दीपन होता है, जमुना की उद्दीपन हो जाता है। कहीं छोटा जंगल को देख करके वृंदावन के उद्दीपन हो जाता है। साबर जंगम देखे नादि की मूर्ति, जहां जहां नेत्र बड़े इष्ट देवी स्फूर्ति। वन देखी ब्रह्म वृंदावन, जहां नदी देखे माने कालिंदी। महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए कांदी। जो महाप्रेमिक होते हैं, प्रेमिक जन होते हैं, महाभागवत होते हैं, वो स्थूल वस्तु नहीं देखते। महाप्रभु ने चटक पर्वत देख करके, हाँ अभी हम लोग वहाँ पर जगन्नाथपुरी से आए हैं, चटक पर्वत को देख करके गिरिराज गोवर्धन मानते हैं। वह निकट में एक वृक्ष है, बड़ वृक्ष के चैतन्य महाप्रभु उसके
ये मान करके क्या बोले, नहीं ये रासस्थली मान करके महाप्रभु लूटपोट खाते थे। समुद्र के देख करके महाप्रभु जमुना समझ करके कूद पड़ते थे। ये सब चेतन चेतन वर्णन है। पढ़न वो तो दूसरी का, हाँ वो तो हाँ वो चले गए, फिर वो स्वरूप दामोदर उनको ले गए, फिर फिशरमैन उसके जाल में आ गया था, वो चल गए ना, वो कथा है। महाप्रभु गंभीरा से आकर के जमुना क्या बोले समुद्र के तट पर बैठे और समुद्र के देख करके नील जल है और सुंदर जो है रेज ऑफ द मून झलमल झलमल करने लगे और देख करके महाप्रभु के वृंदावन की स्मृति हुई। तो महाप्रभु ने किया कि वही वृंदावन की जमुना की लीला, जमुना की प्रेम विहार आदि की लीला स्मरण करके महाप्रभु समुद्र में कूद गए हैं और कूदे तैरते तैरते कोणार्क की तरफ चलने लगे। और इधर 4 बज गया, सर्वदम नारायण मंदार के पूछा गोविंद के ये महाप्रभु कहाँ है, महाप्रभु सो रहे हैं। दरवाजा खोला तो महाप्रभु है ही नहीं। फिर सब राजा प्रतापरुद्र के समाचार दिया, राजा प्रतापरुद्र चारी तरफ सैन्य भेजा, किसी को मिला नहीं। सर्व दामोदर धीरे धीरे समुद्र के तट होते हुए बंकी मोहना होते हुए चक्र तीर्थ के तरफ होते हुए आगे चले और एक फिशरमैन आ रहे, धीवर कहते ना आ रहे थे। उनके शरीर में प्रेम के जो है स्वरूप लक्षण दिखाई पड़ने लगे। उनके शरीर कांप रहे थे, उनके सारे लोमकूप जो है ऐसे हो गया है। और कृष्ण 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 सर्व दामोदर समझ गए ये किसी प्रकार से महाप्रभु के जरूर स्पर्श प्राप्त किया, नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता है। सर्व दामोदर ने पूछा, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं क्या कहूँ, मैं हर रोज मैं मछली पकड़ता हूँ और भाई रात्रि में कहीं भूत पिशाच न आ जाए, इसलिए मैं निशिंग मंत्र जप करता रहता हूँ। आज मैं जाल समुद्र में फेंका तो एक बड़ा मछली आ गया और मछली को मैं ऊपर उठा, देखो मछली नहीं था, ये मृत शरीर था। इतने लंबा शरीर, उसका आंख भी ऐसे उल्टा पुल्टा हुआ था, बिल्कुल जो है आज कंप्लीट अपसाइड डाउन, और उनके मुंह कैसे पड़ता। और मैं तो डर गया, मतलब इसमें तो मृत शरीर ऐसे भूत है, तो इसलिए मैं डरने लगा, इसलिए मैं निशिंग मंत्र जप करने लगा। और जितने मैं निशिंग मंत्र जप करता हूं उतना ही मेरे शरीर क्या है और भी डर लगता। मैं इसलिए जा रहा हूं जी, मैं भूत छुड़ाने के पास है, मुझे भूत छुड़ा दे। हाय हाय मेरे पुत्र मेरे परिवार तो सब बिना भूखे में रह जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। सर्व दामोदर समझ गया ये महाप्रभु के शरीर, ये महाप्रभु किसी ने स्पर्श किया। और सर्वदेव ने 3 थप्पड़ मारा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जा तुम्हारा भूत चला गया। बताओ वो कहाँ है? बोले वो देखो 200 मीटर दूर में, वो मेरा जाल में अभी तक वो भूत पड़ा हुआ है मर। सर्व दामोदर आकर के देखा महाप्रभु के शरीर विशाल हो, लंबा है ऐसे लंग बड़ी, ये हाथ के जो क्या बोलते हैं जॉइंट जो है वो खोल गया, आंख ऐसे हुआ था और केवल शब्द आ रहा है, ज ज ज ग ग ग ग ग ग ग ग शब्द आ रहा है। स्वरूप दामोदर ने क्या कि वही महाप्रभु के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे और कीर्तन करने लगे। हरि हरये नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, हरि हरये नमः कृष्ण। जब नाम संकीर्तन करने लगे महाप्रभु के शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया, जॉइंट अपने आप आ गया। फिर महाप्रभु बाहर आ गए, जाल से बाहर आ गए और स्वरूप दामोदर उसको धो पिछा करके फिर हाथ पकड़ कर लेकर चलने लगे। और महाप्रभु ने पूछा, प्रभु आप कहाँ चले गए थे? तो महाप्रभु के उस समय कहने लगे, देखो मैं आज वृंदावन चले गए और मैं राधा कुंड के तट पर मैं बैठा था और देखो कृष्ण क्या करने लगे, दूसरे सखियों के साथ जल विहार कर रहे थे। ये सब कथा सुने, चैतन्य चरितामृत वर्णन है। महाप्रभु के उस समय 3 दशा बताया जाता है, एक अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा और एक अंतर्दशा। बाह्य दशा मीन्स एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, जब महाप्रभु तब भक्त के साथ नाम संकीर्तन करते हैं। और जब अर्धबाह्य दशा हो जाता है, हाफ कॉन्शियसनेस हाफ कॉन्शियस, उस समय महाप्रभु क्या करते हैं, अपने अनुभूति के बताते रहते हैं। और जब महाप्रभु अंतर्दशा में कंप्लीटली एब्जॉर्ब कॉन्शियसनेस, तो महाप्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, बस धीर स्थिर होकर के बैठ जाते।
तो महाप्रभु ये समय की लीलाएं हैं, आपने जो स्मरण दिलाया ये वही लीला होती है। दिव्योन्माद दशा, राधा ही के दिव्योन्माद दशा कहा जाता है। वो समस्त दशा जो है चैतन्य महाप्रभु वो आस्वादन किया है। बोलो गौ प्रेमानंदी। अच्छा, अब लोग थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। है टेक दिस।